नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो अरिहन्ताणं महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय जय। तत्व चर्चा में श्री आत्मबोध शतक गाथा नंबर 40। काले क्षमा ऊपर थोड़ी बात थई थी, थोड़ी भारी पण पड़ी। दरेक वस्तु बे प्रकार थी समझवानी होय। एक मुनि धर्म होय, एक गृहस्थ धर्म होय। गृहस्थ कोई पण गुण क्षमा विनय वगैरह एने उत्तम रीते पालन नहीं करी सकता, केम के उत्तम क्षमा मार्दवार्जव सत्य शौच तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्याणी आ कोना माटे कीधुं छे? मुनि माटे कीधुं छे। उत्तम रीते पालन करी शके छे, छतां श्रावकने पोताना शक्ति प्रमाणे पालन करवा जोईए। जेम के हिंसा, तो श्रावक ने आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा आ त्रणोनो त्याग नहीं होतो। संकल्पी हिंसानो त्याग होय छे, एटले के जाणी जोईने कोईने दुखी करे नहीं, पण एने घर गृहस्थीना काम करवा होय एटले एने कंईक आरंभ करवो ज पड़े। आजीविका करवी होय तो कंईक उद्योग करवो ज पड़े।
અને એના ઉપર કોઈ આક્રમણ કરે તો એને પ્રત્યાક્રમણ કરવું પડે, એને વિરોધી હિંસા કહેવાય છે. તો આ ત્રણ કોઈ દુર્ગતિમાં લઈ જવા વાળી નથી, છતાં આગળના ગુણ સ્થાનમાં જવા નહીં દે તમને આ વસ્તુ. આગળ વધવું હોય તો પછી આ ત્યાગો તમે. જેમ કે કાલે વાત થઈ કે આપણે ઘરમાં કોઈ ચોરી કરી જાય તો આપણે એને પોલીસમાં રિપોર્ટ કરાવી કે નહીં કરાવી? તો આપણે શ્રાવક છીએ ને, એટલે આપણે પોલીસમાં રિપોર્ટ કરાવવામાં કંઈ વાંધો નથી. પણ જો શક્તિ હોય તો રિપોર્ટ નહીં કરાવો તમે. જો તમે તમારા અધિકાર, તમારી વસ્તુ કંઈક જતી રહી અને તમને એટલો નિર્મમત્વ ભાવ પેદા થયો છે ને એટલો તમને સિદ્ધાંત દ્રઢ થયો છે કે જાવે સો મેરા નહીં ઓર મેરા હે સો જાવે નહીં, તો તમે રિપોર્ટ નહીં કરાવો. ઉત્તમ શાવકોનો તો એવો હોય કે કોર્ટ કચેરીમાં જાય જ નહીં, નિયમ હોય એમને. કેમ કે તમે એકવાર કોર્ટ કચેરીમાં તમે રિપોર્ટ કરાવી તો હવે વિકલ્પ જાગે. કેવા વિકલ્પ જાગે? હવે હજી સુધી આમે રિપોર્ટ લગાવીનું શું થયું? હવે પેલો પ્રશાસનનું કામ તો એના પ્રમાણે ચાલે ને, એટલે 15 દિવસ ફરી ફોન કરે, અભી તક કુછ હુઆ નહીં, ઢૂંઢા નહીં વો ચોર કાં થે. તો આને વિકલ્પો રહ્યા કરે. કેમ રહ્યા કરે? કેમ કે તમે રિપોર્ટ લખાવી છે એટલે તમને રિઝલ્ટની રિપોર્ટ છે, રિઝલ્ટના વિકલ્પ છે તમારે. કે હજી સુધી ભાઈ કંઈ થયું નહીં, પેલાને કંઈ ફેસલો થયો ને, શું છે ભાઈ? તો આ નક્કામાં વિકલ્પ શા માટે કરો છો? जो आप ज्यादा ऊंचा जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, आत्मानुभूति करना चाहते हो, तो ये सब छोड़ो, क्योंकि ये सब आत्मानुभूति में बाधक है. और संसार में ही जीना है तो जियो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. પણ આ તો કોના માટે વાત ચાલે છે? જેને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો હોય એના માટે વાત ચાલે છે. ને એના માટે ભલે આપણે શ્રાવક છીએ પણ મન કેવું હોવું જોઈએ? સાધુ જેવું. ચિત્ત કેવું હોવું જોઈએ? આપણો સાધુ જેવું મન હોવું જોઈએ આપણે. તો આત્માની વાત કરી શકીએ અને આત્મા અનુભવની આશા રાખી શકીએ. નહીં તો આશા એને રાખવી. સાધુ જેવું મન જેને નહીં હોય એને કોઈ વધારે અપેક્ષાઓ રાખવી નહીં કે હું આત્માનો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકું. જેને મનુષ્ય હોવાનો અથવા તો શ્રાવક હોવાનો એનો અધિકાર હોય કે હું આમને તો આ વસ્તુ કરવાનો અધિકાર છે, તો જેને અધિકારનો ઉપયોગ કરવો હોય એને આત્માનુભવ કરવાની વાત ભૂલી જવી. અહીંયા અધિકાર હોય હોતો નથી. અહીંયા તો તમે શ્રાવક હો કે સાધુ હોય, પણ તમે કોઈ પણ આરંભ, પરિગ્રહ અથવા કોઈ પણ પ્રતિક્રિયા કરો તો એના વિકલ્પો જે છે એ વિકલ્પો આપણને જ ભોગવવા પડશે, બીજોને કોઈ ભોગવવા પડે. તમે પોલીસમાં રિપોર્ટ લગાવો તો એના વિકલ્પો કોણ ભોગવશે? આપણે જ ભોગવીશું ને એના વિકલ્પો. તો શા માટે એટલું બધું લાંબુ લાંબુ કરવાનું? જે હતું તે દરેક વસ્તુ જેના જીવનમાં આત્મજ્ઞાન અને આત્મસમાધિની આકાંક્ષા છે એ દરેક પ્રસંગની ક્લોઝઅપ કરે, બંધ કરો. હવે બસ થઈ ગયું એનું સમાધાન. હો ગયા સો હો ગયા, તુમ તેરે ને મેં મેરે. આમ કરીને તરત એ બાઇન્ડ અપ કરી નાખે છે. અને જેને સંસારની રુચિ છે એ વધારતો રહે છે. લાંબુ 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 પેલું દ્રૌપદીના ચીર જેવો પ્રસંગોને લાંબા લાંબા કરે છે. એનો મતલબ એમ છે કે તને હજી સુધી આત્મામાં રુચિ, તને વિકલ્પોમાં રુચિ છે. કોઈકની સજા મળવી જોઈએ અને કોઈને આ થવું જોઈએ, એમાં રુચિ છે તને. અને જ્યાં સુધી રુચિ છે ત્યાં સુધી આત્માની વાતો ભૂલી જાઓ. એટલે બધા સાથે ક્ષમા, ઉત્તમ ક્ષમા. છતાં ગ્રસ્ત માટે એમ કીધું છે, ફૂફકારો મગર કાટો મત. कभी फुफकार ना पड़े तो उसको फुफकारना. फुफकारने में द्वेष नहीं है, बदला लेने की भावना नहीं है,
वो व्यक्ति थोड़ा सुधरे, बस इतनी अपनी भावना है कि अगली बार वो गलती नहीं करे, इसलिए थोड़ा डांट डपट कर दो, फुफकार दो, उसमें कोई वांधा नहीं है। वो भी अपनी नीची भूमिका है तो करो, ऊपर की भूमिका में तो वो विकल्प भी नहीं आते, जो करना वो करने। हमको तो तेरे को फुफकारने की भी फुर्सत नहीं है। किस किस को फुफकारो आप, किस किस को डांट डपट करते रहोगे आप, आज करोगे कल फिर से वो करेगा, किस किस को सुधारने का प्रयत्न करोगे। इसलिए थोड़ा बहुत व्यक्ति देखता है कि इस व्यक्ति की योग्यता है, सुधर सकता है, 2-4 बार कह के देखता है, फिर तो उसके कि इसके अंदर पेट्रोल खत्म हो गया है। बहुत समय पेट्रोल खत्म हो जाता है, सुधरने की गुंजाइश नष्ट हो जाती है। फिर उसके प्रति मध्यस्थ है, तुम तेरा जीवन जियो भाई, हम तो अत्यंत मध्यस्थ भूतवा, हाँ मध्यस्थ हो जाता, और वो व्यक्ति फिर निर्विकल्प समाधि में जा सकता। इसके पहले अपेक्षाएं करनी। साधु हो कि गृहस्थ हो, आत्मा का अनुभव करने का मार्ग तो एक ही है, दो मार्ग कभी होते नहीं है। जिसको आत्मा अनुभव करना है उनको तो विकल्प कम करने पड़ेंगे, और जिनको विकल्प कम करने हैं उनको आरंभ परिग्रह कम करने पड़ेंगे, और तत्व ज्ञान में अधिष्ठित, और उनको ही क्षमा आदि को साधना पड़ेगा। अपनी भूमिका में जितने क्षमा, विनय, सरलता, संतोष, तप, त्याग, निर्मोहीपना, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपनी भूमिका में जितने हो सकते उतना तो अपने को सिद्ध करना ही चाहिए, नहीं तो फिर आत्मानी मस्ती नथी कहीं सस्ती। हाँ उत्तम मोक्ष। हाँ જ્યોતિબા હું ક્યારેક એમની પાસે બેસતો તો એમ જ કહેતા કે આપણે ભલે હિંસા મુનિ જેવી નહીં પાળી શકીએ પણ ભાવના રાખી શકીએ, અને આપણે પાળી કેમ નહીં શકીએ? પાળી શકીએ ને, જેટલી યત્ન રાખી શકાય એટલો તો રાખી શકાય ને, એમાં શું વાંધો છે અહીંયા? ऐसे एक संध्या दीदी के मम्मी का भी दृष्टांत है। हाँ, वो उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में मर गए थे उनके पापा जी, ऐसे उनका देह विलय हो गया। तो सब लोगों ने वो जो आदिवासी जीप चला रहा था ना, उसी जीप से ही टक्कर, ऐसे खूब सारे लोग भरे हुए थे और उसकी गलती से हुआ था। तो सब ने वो उनके के रिपोर्ट करानी चाहिए, उनके मामा जी ने सब ने कहा। तो संध्या दीदी के मम्मी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं कराना है, ये तो इनके आयुष्य कर्म इतना ही था और ये निमित्त बना है। तो सबने कहा कि तू तो पागल हो गई है, ऐसे पति जैसा पति गया है और ऐसा बोल रही है यूँ। तो सबने नहीं मानी, उनकी एक नहीं सुनी और रिपोर्ट कर दी। फिर कोर्ट में जब केस आया ना, तब सबकी ऐसे वो सुनवाई हुई, पर अंत में कहा कि यदि उनकी पत्नी जो कहेगी उसको मान्य रखेंगे। तो सबने इतना समझाया कि तुम्हें वहाँ कोर्ट में ये बोलना है, वो बोलना है, और तू बोले कि फिर ऐसे इतने पैसे मिलेंगे नहीं, इस प्रकार से सब बहुत समझाया। फिर कोर्ट में गए और फिर जज के सामने उन्होंने जो समझाया था, जो बोलने के लिए कहा था, उससे बिल्कुल विपरीत ही बोले हो। और कि ये गरीब आदमी है, ये बेचारा ऐसे मजदूरी करके कर रहा है, अपने को ये सब ये मात्र निमित्त ही है, यूँ ये इनका ही आयुष्य कर्म क्षय होने से ही मरे हैं, और उसको छोड़ दो यूँ जज साहब, ये बहुत गरीब आदमी है यूँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर घर पे आके सब उनके ऊपर बहुत टूटे, तो उन्होंने शांति से सब सुन लिया, पर उन्होंने कहा कि जो मुख्य वस्तु है वो तो ऐसा ही है, गुरुओं ने ऐसा ही कहा है। यदि आज मैं आपने कहा वैसा मैं मान लेती और ऐसे आपके अनुसार यदि मैं ऐसे जबान देती, तो उसके साथ फिर वैर का बंधन बनता, और इस भाव में अब सब वैर समाप्त करने हैं, किसी से वैर बांधना नहीं है। ये महात्मा का लक्षण है। उत्तम क्षमा है। तो एमना घरमा छे ने एक बार सांप निकलो, एमनो घरનું કામ ચાલતું, तो भी जब तक सांप है तब तक काम नहीं हो सकता है। तो एम के पेला બધા એમ કીધું અમે આ सांपને કાઢી દઈશું, અમે काम चालू करो, नहीं इसको रहना तो रहे यहाँ पर, जब तक रहेगा उसके हिसाब से नहीं जाएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। એટલે આ જ્ઞાનની વાતો છે એ ખાલી આ વાતો કરવાની નથી, ખાલી વાતો કરવાની નથી, આ તો જ્ઞાન તો ઉતરવું
જોઈએ છે. और अपने पति के बारे में कोई આપણે અહીંયા મોટી મોટી વાત કરીને જરા કામ કોઈકને ખિલાફ થઈ જાય ને તો જરા ન્યાયની વાતો કરવા લાગી છીએ આપણે. क्या न्याय नहीं, क्या अन्याय की बातें करते हो आप? आपके साथ जो हुआ आपके कर्म से हुआ है. ऐसे वो रोए भी नहीं भैया जी. और उनका जब ऐसे एकदम अंतिम समय में ऐसा था, उन्होंने इतनी अच्छी उनको धर्म साधना सब कराई और कोई आके रोता था तो उनको डांटते थे. बराबर. अंतिम समय में एक बहुत अच्छा समाधि मरण, ऐसे सुगति मरण उनका कराया उन्होंने, संध्या दीदी ने और उनके मम्मी ने, दोनों ने मिलके. हाँ, तो इसका नाम जैन कहलाता है. इसको जैन कहते हैं. वो एक दृष्टांत और सुन लेते हैं. तो एक धनिक कुटुंब था, मुमुक्षु परम कृपाल देव के भक्त थे. अब वो बहुत धनिक थे, तो वहाँ उनके यहाँ बहुत मेहमान आए, तो चांदी के बर्तन निकाले भोजन के लिए. तो चांदी के बर्तन में सबको भोजन कराया और बस भोजन का समाप्ति हो गई. वो जो नौकर था जो सफाई वगैरह करते थे, उनको उसको ज़रा चोरी की ये इच्छा हो गई इतने बर्तन देख के. तो उसने सब बर्तन इकट्ठे करके कपड़े में बांध के वो जाने लगा. तो वो जल्दी जल्दी चलने लगा. तो माता जी को कुंवर नाम मैंने बराबर याद नहीं है. तो उन्होंने देखा जा रहे थे और भाग के जा रहा था. तो वहाँ से पुलिस को कुछ शक गया, तो रोका उन्होंने कि तुम क्या कर रहे हो. तो कहने मैं तो काम से जा रहा हूँ. तो उतने में वहाँ से उन्होंने माता जी ने देखा था, वो उनको रोका. तो वहाँ पर गए, बोला कि क्या हुआ. तो कि ये भाग रहा है कुछ उसने. तो कि ये जो उसके पास सामान है ना, मैंने उसको अभी भेंट में दिया है. तो वो लेके जा रहा है, इसको उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है. फिर बाद में जब उसको आया तब उसको डांटा, सब उसको किया. भाई तुझे ज़रूरत है तो ले जाना था, पर कहा क्यों नहीं. पर वहाँ उसको छुड़ाया कि भाई ये तो मैंने उनको भेंट दिया है, इसलिए वो सामान ले जा रहा है. जिनदत्त सेठ જેવો કર્યું है. પેલું કથા આવે છે ને, બાકી ઉપગુણ અંગમાં जिनदत्त सेठની कथा આવે છે ને. मतलब ये तो सब अपने जीवन में जब हृदय ऐसा बनता है, महात्मा का हृदय बनाना चाहिए. हम बात करते हैं आत्मज्ञान की समाधि पर, हमारे पास संत का हृदय कहाँ है? वो संत का हृदय नहीं होगा तो कहाँ से आए ये सिद्धांत की बातें, कहाँ से उतरेगी अपने? न्याय अन्याय की बातें करने से सिद्धांत की बातें उतरती. एक ही न्याय है, बन्यु ते न्याय. वो क्या है? एक ही न्याय सृष्टि का बन्यु ते. इस सिद्धांत को जितना अधिक अपन घोल के पी सके ना और रोम रोम में उतर जाए ना, उतना ही अच्छा है. क्योंकि ये संसार, हमारे समाज की व्यवस्थाएं, संसार, प्रशासन, ये लोग, ये संस्थाएं, ये हमारे काम नहीं आने वाली. हमारे तो हमारा जो स्वधर्म है वो हमारी क्षमा ही हमारे शरण रूप है. हमारा मार्दव भाव है वही हमारा शरण रूप है. हमारी सरलता है वही हमारा शरण रूप है. हम किसी के लिए क्यों क्षमा छोड़ें, क्यों विनय छोड़ें, क्यों सरलता छोड़ें, क्यों अपना संयम छोड़ें, क्यों अपना तप त्याग और ब्रह्मचर्य छोड़ें किसी के लिए? यही अपने लिए शरण रूप हैं, यही अपने हैं, और कोई अपने नहीं है. इसलिए अपनों को हमेशा बचा करके रखना चाहिए. ये तो सामान्य. फिर भी जगत में, व्यवहार में प्रसंग के अनुसार चलना. गृहस्थ जीवन है अपना, तो किस प्रसंग में क्या योग्य है क्या अयोग्य है, इसको देख करके अपने को चलना. जब बात बहुत से लोगों के अहित की आ जाती है तो वहाँ अपने व्यक्तिगत क्षमा आदि को बाजू में रख देना. अपनी व्यक्तिगत बात आती है तो उस पर अड़े रहना. पर जब 10 लोगों का नुकसान उससे हो रहा है तो भाई अभी ये रखने योग्य नहीं है. ऐसा गृहस्थ जीवन में ऐसा बैलेंस बना करके रखना पड़ता है. आप तो बहुत अच्छी क्षमा रख रहे हो, पर इससे आपका सारा परिवार दुखी हो रहा है. तो आपको परिवार को दुखी कर, क्योंकि आप मुखिया हो, इसलिए आपको परिवार को दुखी करने की आवश्यकता. अभी अपने आश्रम में कोई एक व्यक्ति है और वो बहुत परेशान करता है, आश्रम में रहने योग्य ही नहीं है, परंतु उसके ऊपर क्षमा बार बार कई वांधो नहीं, बिचाराનું कई नहीं, आज है एम कहीं राखिए. अब दूसरे लोगों को, अच्छे लोगों को वो परेशान कर रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको आपकी क्षमा दिख रही है. बोलो जारे जाए ना कोई पासे तो मैंने माफ़ कर दो ने, तो वो माफ़ कर देता है सामने वाला. कहीं को माफ़ करना उसका? तू सुधरेगा तो तेरे को माफ़ करे, तो तेरी वृत्ति सुधार. नहीं तो सार्वजनिक रूप से रहना है, सार्वजनिक हिसाब से रहना है, तो सार्वजनिक जैसा रहा जाता वैसा रहो. तू क्षमा का पात्र नहीं है.
क्योंकि तेरे एक को क्षमा करने से सज्जनों को नुकसान हो रहा है। वो बेचारे सज्जन पीड़ा भोग रहे हैं, वो तो दिखता ही नहीं है, उनके ऊपर द्वेष भाव है उस व्यक्ति को। जो दुर्जन को क्षमा करता है उसको सज्जनों के ऊपर द्वेष भाव, अथवा तो पता ही नहीं पड़ रहा है, उसको इतना विवेक ही नहीं है कि जो सज्जनों को परेशान करता है उस व्यक्ति को आश्रय देने जैसा योग्य नहीं है। ये विवेक चाहिए हर एक चीज में। गुरुगम के बिना कहाँ से, वो केवल अपनी ही भावनाओं में ही बह रहा है बस, बिचारा नु शू थसे बिचारा, पर वो बिचारा नहीं है, वो कितनों को परेशान कर रहा है। जो दूसरों को परेशान कर रहा है वो काहे का बिचारा है आपका। अपने यहाँ कुत्ते हैं छोटे छोटे जो भी हैं, आप उनको बिचारा बिचारा करके रखो, उनके ऊपर दया करके रखो, पर वो कितनों को मार रहे हैं, रोज कितने जानवरों को मारते हो, अब काहे के बिचारे हो गए वो। आप उनके ऊपर क्षमा रख रहे हो पर दूसरों के ऊपर द्वेष रख रहे हो। जो दूसरे जानवरों ने क्या गुनाह किया है, जो बेचारे निर्बल हैं उनको मार मार के खाते हो और आप उनको खाना वाना दे करके पुष्ट कर रहे हो, तो ये कहीं की दया है? ये दया का स्वरूप ही नहीं है इस प्रकार का। अपनी संस्कृति में पालतू पशु कौन है पता है? पालना किसको चाहिए? जो शाकाहारी है, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, हाथी, ये पालतू पशु में गिने गए। क्यों? क्योंकि ये सब शाकाहारी है, इसके अलावा कोई भी पालने योग्य है ही नहीं। ये कुत्ता ने, बिल्ली ने, ये पालने वाले जीव नहीं होते हैं, ये ही जंगल में ही रहने योग्य हैं। ये सारे के सारे तुम जंगल में रहो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही जंगली है। अब हमने अपने घरों में घुसा रखा है उनको, और गाय ने, भैंस ने, उनको तो हमने छोड़ रखा है। वो तो अब आजकल छूट रहे बेचारे, उनको तो कोई पालन ही नहीं कर रहा है। पालतू पशु इन्हीं का नाम, पालना इनको चाहिए, पर जिनको नहीं पालना चाहिए उनको हम पालते हैं, पालना चाहिए उनको हम पालते हैं। विवेक की कमी, सब जगह विवेक चाहिए। धर्म का मूल है वो विवेक है। केवल इमोशंस के ऊपर धर्म चलता, भावनाओं के ऊपर धर्म नहीं चलता है। विवेक की जरूरत होती है, नहीं तो कब कौन सा पात्र है कौन सा अपात्र है वो विवेक नहीं हो तो फिर ऐसा समझना चाहिए। चलो अपने प्रकृति उस पे आते हैं, तो ऐसे क्षमा को अपेक्षा से समझना चाहिए। 40 नंबर, एक एक लाइन चलना। पिता पुत्र धन दौलत नारी मोह बढ़ावन हारे हैं। पिता पुत्र धन दौलत नारी मोह बढ़ावन हारे हैं। परम देव गुरु शास्त्र समागम मोह घटावन हारे हैं। परम देव गुरु शास्त्र समागम मोह घटावन हारे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित सब मोह नशावन हारा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित सब मोह नशावन हारा है। रत्नत्रय की नैया ने ही नंत भव्य को तारा है। रत्नत्रय की नैया ने ही नंत भव्य को तारा है। पिता पुत्र धन दौलत नारी मोह बढ़ावन हारे हैं। परम देव गुरु शास्त्र समागम मोह घटावन हारे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित सब मोह नशावन हारा है। रत्नत्रय की नैया ने नंत भव्य को तारा है। रत्नत्रय की नैया ने नंत भव्य को तारा है। ફરીથી જ વાત કહે છે, પિતા પુત્ર ધન દોલત નારી મોહ बढ़ावन हारे हैं। કડક વાત છે। मीठो लागे છે બધા, આ બધું मीठा लागे ना આપણને, परंतु बढ़ता क्या है उससे? मोह बढ़ता है। मतलब परिवार, कुटुंबी, उनके साथ रहने से क्या बढ़ता है? अपने मोह बढ़ता है, आसक्ति
बढ़ती है। और ये तो सबके अनुभव की बात है, बड़े बड़े लोग सब कहते हैं। बहुत वर्षों तक वैरागी होकर के रह करके जंगल में रह करके जीव आया हो और 1 महीने अपने घर में रहता है ना, चोपड़ा साफ, 10 साल का वैराग साफ हो जाता है उसके। ऐसे खतरनाक वस्तुएं हैं ये। परंतु खतरनाक वस्तुएं हैं वो अपने को कैसी लगती हैं? अमृत के जैसी मीठी लगती है। बताइए ना, अपने को परिवार मीठा लगता है, मित्र मीठे लगते हैं, जो राग बढ़ाते हैं, मोह बढ़ाते हैं, प्रेम करते हैं, वो सब अपने को बहुत मीठे लगते हैं। परंतु ये मीठा जहर है और धीमे 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 अपने आत्मा को खा जाता है। शत्रु जितना अनर्थकारी नहीं है उतना अनर्थकारी ये मित्र होते हैं। ये परमार्थ है, बुरा मत मानना, वास्तविकता। क्योंकि वो शत्रु बांधता नहीं है और ये लोग बांधते हैं। और दुख है वो बंधन में है, पराधीनता में दुख है। हम शत्रु के दास होकर के नहीं रहना चाहते, परंतु हम अपने मित्र के, अपनों के दास होकर के रहना चाहते हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते। जेल से व्यक्ति निकलना चाहता है, हर क्षण उसको होता है कि मैं कब निकलूं। घर से व्यक्ति निकलना चाहता नहीं है। अब बताओ खतरनाक कौन है? एक ये ऐसी वस्तुएं हैं, घर परिवार वगैरह, कि उसमें मन से व्यक्ति दासत्व स्वीकार करता है ऑटोमेटिक। और वहां तो जबरन आपको पकड़ के रखा है, इसलिए वह रहना चाहते नहीं है। तो ये ऐसी मीठी वस्तुएं हैं, समझना चाहिए कि पिता पुत्र धन दौलत नारी मोह बढ़ावन हारे हैं। पुत्र भी मोह बढ़ा, बड़े बड़े महात्माओं को पुत्र मोह खा गया है, समझ जाना, ये खा जाता है, ये मोह बड़े बड़े महात्माओं को खा जाता है। तो क्या करना उनको? उनको त्यागना। आगे कहते हैं परम देव गुरु शास्त्र समागम मोह घटावन हारे हैं। तो मोह को घटाना है तो क्या करना? परम देव। परम देव किसके कहते हैं? वितराग देव। भगवान को यहां पर परम देव का है। देव का मतलब स्वर्ग के देव नहीं, व्यंतर देव वैमानिक, वो भी देव नहीं, और भी अपने जितनी देवी देवताओं को मानता करते हैं वो भी नहीं। जिसके समस्त मोह राग और द्वेष, समस्त दोष निकल गए हैं, जो किसी के ऊपर न तो प्रसन्न होता है और न ही किसी के ऊपर नाराज होता है, वो सच्चा देव है। स्तुति करो तो खुश हो जाता है और आपने उसकी उपेक्षा की तो श्राप दे देता है। अब उसको देव कहां से कहोगे आप? उसमें देवत्व के लक्षण ही नहीं है। वो तो जैसे कोई खुश अपने सेठ की खुशामद करता है तो उससे सेठ खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा दे डालता है, और कोई सेठ को कोई निंदा करता है तो सेठ उसका पेमेंट काट देता है। इसी प्रकार से हुआ, वो तो घर गृहस्थी जैसा ही हुआ ना, पक्षपाती। तो यहां तो आप स्तुति करो कि नहीं करो, वो तो अपने स्वरूप में अडिग हैं, ना आपसे राग है ना आपसे द्वेष है। आपकी गरज हो तो आप उनकी स्तुति करो, उनकी स्तुति करने से आपको पुण्य बंधेगा ऑटोमेटिक। वो वरदान नहीं देते हैं, भगवान किसी को वरदान देते नहीं है। अगर भगवान वरदान देते और भगवान का वरदान लग जाता, आशीर्वाद, कोई आशीर्वाद दे और किसी का आशीर्वाद लग जाए, तो भगवान तो इस समस्त जगत के ऊपर करुणा करने वाले हैं, है ना, उनकी तो करुणा समस्त जगत के ऊपर। तो क्यों किसी को दुखी रखे? सबको आशीर्वाद देता हूं, सबका कल्याण हो, ऐसा अपन कहते हैं, पर सबका कल्याण होता है? ये अभी कोरोना चल रहा है ना, सब प्रार्थनाएं करते हैं, सबके अपनी अपनी प्रार्थना रोज करते हैं, परंतु प्रार्थना करने का फल क्या बताओ? ये रोग जा रहा है क्या आ रहा है? तो वो अपनी प्रार्थना करने से ये नहीं, अपनी प्रार्थना क्यों करनी? किसी के उदय को हम नहीं बदल सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अपनी प्रार्थना हम अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपने मन को लगाने के लिए करते हैं, और अपने मन को पवित्र करने के लिए निस्वार्थ भावना करनी पड़ती है।
मैं मेरे लिए प्रार्थना करूं तो स्वार्थ आ गया। इसलिए किस लिए प्रार्थना करना? सर्वे भवन्तु सुखिना, ये निस्वार्थ भाव हुआ। अब उससे सारे लोग सुखी तो नहीं होंगे, आप सुखी होंगे। सुखी कौन होगा? जो भावना कर रहा है वो सुखी होता है। क्यों? क्योंकि कर्म का फल किसको लगता है? भाव का फल अपने को ही लगता है ना। ये त्रैकालिक सिद्धांत है। भाव का फल किसको लगेगा? जो भाव करता है उसको भाव का फल लगता है। मैं आपके लिए 1000 प्रार्थना करूं पर आपका उदय नहीं है, आपके लिए वो नहीं लगेगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लोग इसलिए भगवान को कहते हैं नाराज हो, भगवान हम आटली प्रार्थना करें हमें तो सांभळो। पर भाई आपने कर्म ही ऐसे किए कि उनका उदय इतना तीव्र है कि भगवान क्या करे, आपकी प्रार्थना भी क्या करे। सब प्रार्थना करते हैं। हमने साहिब जी बीमार थे तो कितनी प्रार्थना की, हम उनको बचा सके? कौन किसको बचा सकता है? और जिसका आयुष्य कर्म पूरा नहीं हो उनको मार भी कौन सकता है? जिसको जो जो भोगना है वो अपने अपने कर्म के अनुसार भोगेगा। हमको पवित्र भावना रखना, तो इससे क्या होगा? हमारे शांति रहेगी, हमें दुख नहीं होगा। पर हम अपने स्वार्थ के लिए, हम सुखी होने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना तो ऐसी कि तुम सुखी हो, परंतु कोई द्रव्य किसी को सुखी अथवा दुखी कर नहीं सकता। यह ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान जब नहीं रखते हैं तो આકુલતા વ્યાકુલતા અમે આટલી પ્રાર્થના કરી છતાં કાંઈ ફરક નહીં પડે। એનો મતલબ આ ધર્મ છે ને બેકાર છે। કંઈ અનુષ્ઠાન કરવાને, કંઈ કરવો ને, આ શાંતિ પાઠ नहीं करवाने, विधान नहीं करवाने, तो करने सब करने। क्योंकि आप वो नहीं करोगे तो आपका मन अर्थ ध्यान में जाएगा, आप विचलित होंगे। इसलिए कम से कम नया पुण्य नया तो बांधे। पुराना तो जिसका उदय में आया है जैसा होगा वैसा होगा, पर अब नया पाप नहीं बन देने आर्त ध्यान करके, नया पुण्य बांधने में। तो उसकी उदीर्णा हो करके हो सकता है अपने कदाचित उदय ऐसा हो तो रोग आदि खत्म भी हो जाएंगे। होना हो तो होगा, हो नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ये देवी देवताओं को अपन मानते हैं ना कि मैंने ये माता जी को ये चढ़ा दिया ना, इसके कारण ये हुआ ना, किसी के कारण कुछ नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपका उदय है तो उसमें वो निमित्त बन जाते हैं। उनके अंदर निमित्त बनने की सामर्थ्य है, प्रभाव है। ऐसा रिद्धियां होती है ना, किसी की रिद्धि होती है तो वो कहते जा भाई बेटा तेरा ऐसा हो जाएगा। तो वो रिद्धि कब लगती है किसी को? जब सामने वाला का उदय होता है तब उसका प्रभाव उसको लगता है, नहीं तो उसको नहीं लगता है। हाँ, ये वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेना है। हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि हमको भगवत्ता प्राप्त करनी है, उनके जैसे गुणों को प्राप्त करना है। बाकी हमारा कोई स्वार्थ नहीं। और लोक कल्याण की भावना तो सबके हृदय में होनी ही चाहिए। इसके बिना मन पवित्र नहीं होता। मन को पवित्र करने के लिए लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। किसी भी जीव के अहित का भाव मन में चल रहा है तो अंदर से धर्म उपजेगा नहीं, हमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी शांति के लिए ये सारी चीजें अपन तो, और ऐसा है तो फिर कर्तापना नहीं है। लोगों को ये वस्तु स्वरूप नहीं जानते ना, इसलिए हर चीज में कर्तापना आ जाता है कि देखो मैंने सेवा करी और ऐसा हो गया। तो तूने सेवा दूसरों को ध्यान में रख करके की, इसलिए तेरे कर्तापना आया। पर हमने तो सेवा दूसरों को ध्यान में रख करके नहीं की है, हमने तो अपने मन की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। कोई कहते हैं कि आप इतना दान क्यों देते हो? तो अपनी प्रसन्नता के लिए दो। क्यों? क्योंकि दूसरा सुखी होता है तो उससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। और इसमें कर्तापना आएगा ही नहीं आपकी, इसमें स्वार्थ भी नहीं आएगा कुछ भी। और दूसरों को देख करके करोगे और दूसरा तो आपके दान से अथवा आपके औषधि से वो ठीक नहीं हुआ तो आपको अकुलता होगी, यार मैंने इतना दिया और वो तो ठीक ही नहीं हुआ, इतना मत देना बेकार। तो आपने दूसरों की अपेक्षा रखी थी। अब अपने मन की प्रसन्नता के लिए हम आपके लिए जितना कर सकते हैं उतना करें, उसमें मुझे खुशी मिलती है। ये तो सब अपने लिए, किसके लिए कौन कर रहा है? अपने आत्मा की शांति के लिए अपन तो कर रहे हैं। ऐसा जो करता है वो अकर्ता भाव से सारे जगत का कल्याण कर भी देता है। कर्तापना भी नहीं आता है और सबका कल्याण भी कर देता है। और दूसरों को लक्ष्य में रख करके करता है, उससे कुछ होता भी नहीं है। और कर्तापने के अहंकार से
वह वापस वो पुण्य तो जितना बांधना था उतना बांधता नहीं है, पाप बांध करके चला जाता। ये कर्म रहस्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग में यही सिखाया है कि आप अपना कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा और अपना कर्म आप दूसरे के लिए नहीं, अपने आत्मा को विकास के लिए करना। दूसरों के लिए मैं क्षमा दूसरों को क्यों देता हूं? दूसरा सुखी हो से नहीं, मेरे क्षमा देने से मेरे को शांति मिलती है, अपने को भी तो शांति मिलती है उससे, और दूसरे को तो मिलेगी। अगर उसका भाव अच्छा होंगे तो उसको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी आपके क्षमा देने से उसको शांति। ऐसा तत्व ज्ञान बराबर दृढ़ होना चाहिए। फिर देखो निष्काम भाव से कितने लोगों का कल्याण होता है अपने हाथ से, ऑटोमेटिक बिना कहे हो जाता है। निश्चय से तो कोई किसी का नहीं हो सकता, पर व्यवहार से कोई किसी का हो सकता है, तो ये गड़बड़ घोटाला है। कोई किसी का नहीं हो सकता ये सत्य है, पर व्यवहार से उसको कहा जाता है, हो नहीं सकता है क्या? तो करना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? परंतु इससे आपका तत्व नहीं हो गए, वो आपका जीव तत्व नहीं बन गए वो। समझ में आई बात? कहना अलग बात है और हो जाना अलग बात है। यही तो व्यक्ति भूलथाप खाता है। व्यवहार और निश्चय की ऐसी मैत्री बनाना चाहता है। कैसी मैत्री बनाना चाहता है? निश्चय से ये नहीं हो सकता है, पर व्यवहार से ये अपना हो सकता है। मतलब आपने अपने द्रव्य रूप तो मान ही लिया है उसको, तो उसका जीव द्रव्य अलग है, अपना जीव द्रव्य अलग है। पर व्यवहार से समाज की व्यवस्था चलाने के लिए हम कहते हैं कि ये भाई मेरा पुत्र है, ये लड़का मेरा है, ये घर मेरा है, ऐसा कहा जाता है, होता नहीं है। ये स्पष्ट ध्यान रखना। कहा जाना अलग वस्तु है और होना अलग वस्तु है। कहा तो ऐसे ही जाएंगे, हम अपने किसी प्रिय को ऐसे ही कहेंगे कि हम एक ही हैं, आप हमसे अलग मत समझना, केवल दो शरीर हैं, आत्मा तो हमारी एक ही है। ऐसा ये प्रेम है। परंतु उस समय भी उसको स्पष्ट है, भले कहो कुछ भी, पर एक हो नहीं जाएंगे। ये जागृति हमेशा अच्छी तरह से रखनी। मैं और मेरा गुरु दो अलग नहीं है, क्योंकि उनके जैसा मन है, उस वैसा मन मिल गया ना एक दूसरे के, परंतु फिर भी वो दो द्रव्य अलग है। सत्य उपदेश नोट में भैया जी कृपालुदेव ने बहुत अच्छा ऐसे परिचय कैसे देना है, ऐसे पुत्र है कि चेलना रानी कान, ऐसे अंदर में क्या रखना और बाहर से जो बोलता है। बाहर से तो बोलने में तो ऐसा आएगा ना, तुम्हारा नाम क्या है, तो अपने को नाम बताना पड़ेगा। आत्मा ऐसा नाम थोड़ी बताएंगे। उपदेश 9:34 में सत्य का पाठ लिखा, उसमें लिखा है कि सत्य वचन किसे कहेंगे, परमार्थ सत्य किसे कहेंगे। तो जैसे कोई आपको अपना नाम पूछता है तो उस समय आप अपना नाम उसको बताते हैं, वो व्यवहार सत्य है। परंतु वो व्यवहार सत्य भी परमार्थ सत्य रूप कब होगा? कि जब आप ऐसा मानते हो कि ये नाम मेरा नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो कोई नाम होता नहीं है। ऐसी अंतर जागृति रख करके आप नाम बताते हो, तो वो भी व्यवहार से सत्य है। तो वो व्यवहार से सत्य नहीं तो मिथ्या वचन है आपका। परमार्थ ध्यान में रख करके जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार सत्य है। बाकी जो परमार्थ ध्यान में रख करके जो व्यवहार नहीं किया जाता वो व्यवहार भी सत्य नहीं है, वो व्यवहार भी झूठा। ऐसा है वो तो। प्रेरित परमार्थ ने ते व्यवहार समंत, तो असत्य वचन कहा उसको। कि अगर उन्होंने एक उदाहरण और दिया कि लोक का स्वरूप के बारे में पूछे कि भाई ये लोक कैसा है, अब आपने तुरंत बता दिया ये लोक तो पुरुषाकार है, परंतु आपने कैसे जाना? पुरुषाकार देखा तो है नहीं। अब आपने जब प्रत्यक्ष साक्षात्कार उसका किया नहीं और आपने बोल दिया, तो बीच में अगर आपने ऐसा साक्षी नहीं रखी कि आगम में ऐसा कहा गया है, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा अभिप्राय ध्यान में नहीं रख करके कहा तो झूठ वचन। सत्य कहा है तो भी झूठ वचन। क्यों झूठ वचन? अजागृति पूर्वक बोला गया वचन है। और अजागृति पूर्वक मतलब प्रमाद, और इसी का नाम तो प्रमाद है। सत्वार सूत्र में इसी का नाम तो है, प्रमत्त योगात प्राणवपणम हिंसा असद अभिधानम।
वो प्रमत्त योग है वो वहां पर लाना। तो प्रमाद के योग से बोला गया वचन है वो सब क्या है, झूठा है। भले सही बोल रहे हो तो भी झूठा है। क्यों? क्योंकि स्वरूप ध्यान में रखा नहीं। अब बोलो कितना सत्य बोलते हैं अपन दिन में दिन में कितना सत्य बोला। अंतर्भेद जागृति नहीं है, और जो जो हम कहते हैं वो सच्चा भी कह दिया तो भी झूठ वचन। ये बड़ा कड़वा धर्म है पर इस कड़वे को पिए बगैर अपने कुछ चलेगा नहीं। और ये बैठना भी कठिन है कि व्यवहार से सत्य क्यों नहीं मानते हो, उसको हम व्यवहार नहीं मानते, हम उसको उपचार कहते हैं। कोई अज्ञानी व्यक्ति अपनी माँ को माँ कहता है तो वो सही है, उपचार से है उसको उपचार कहते हैं हम। परमार्थ सत्य नहीं है और व्यवहार से भी वो सत्य नहीं है, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है। शराब पिया हुआ व्यक्ति होता है ना, विपरीत ज्ञान का लक्षण दिया है, सद असत और विशेषाद्य यद्यच्छो उपलब्धेर उन्मत्तवत, ऐसा सूत्र दिया तत्वार सूत्र में कि विपरीत ज्ञान क्या होता है। मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं कि जो सत और असत में भेद को नहीं करते हुए जैसे तैसे उन्मत्तवत पागल की तरह दारू पिए की तरह बोलता है। तो वो क्या कहता है, कभी तो अपनी माँ को माँ कहता है और कभी अपनी माँ को पत्नी भी कह देता है, कोई ठिकाना नहीं उसका। इसीलिए जब उसको अपनी माँ को माँ कहता है उस समय भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति कभी व्यवहार से कभी सही बोलता है तो भी उसको परफेक्ट निश्चय नहीं है, इसलिए उसको झूठ वचन, सत्य वचन नहीं है। और इसी कारण से पहले गुण स्थान में तो सत्य वचन है ही नहीं, सत्य वचन चौथे गुण स्थान से चालू होता है। अब बताओ, वहीं से चालू होता है सत्य वचन। आप सत्य वहां से बोलना चालू कर देते हो। क्यों? क्योंकि अंतर्भेद जागृति पूर्वक बोला गया है। फिर भी साधना चाहिए अपने को, सब चीजों को पहले साधना चाहिए। तो यहां आगे कहते हैं कि परम देव गुरु शास्त्र समागम मोह घटाने, देव की बात चल रही थी। तो जो राग और द्वेष से रहित है वही देव हैं, जो समस्त आरंभ और परिग्रह से मुक्त हैं, ऐसे ही गुरु होते हैं। और जो अपने मोह राग द्वेष को घटाए ऐसी जो वाणी होती है वही वास्तव में वाणी है। और ये सब क्या करते हैं, मोह को घटाते हैं। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित सब मोह नशावन हारा है ये तो मोह घटाते हैं। और मोह का नाश कौन करता है? अपने उपादान। अपना उपादान क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अपना स्वधर्म है। ये अपने मोह का नाश करते हैं। देव शास्त्र गुरु आपके मोह का नाश करने में निमित्त हो सकते हैं, परंतु मोह का नाश नहीं कर सकते हैं। मोह का नाश तो आपको अपनी मान्यता करेगी, अपना सम्यक ज्ञान करेगा, और अपना सम्यक आचरण है वो ही मोह का नाश करेगा। दूसरा कोई मोह का नाश कर सकता? अपना धर्म जब धारण करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। उपदेश बहुत दिया गुरु ने, पर अपन धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस उपदेश का कोई अर्थ नहीं है। गुरु ने तो बहुत कहा कि सत्य बोलो, छल कपट मत करो, पर जाता ही नहीं है। बात बात में झूठ बोल लेते हैं। कभी अपने मान के कारण बोलते हैं, कभी लोभ के कारण बोलते हैं, कभी क्रोध के कारण बोलते हैं, कभी हास्य में बोल जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो बेचारे गुरु क्या करें? इसलिए धारण करना पड़ता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित सब मोह नशावन हारा है। इसलिए क्या करना? रत्नत्रय की नैया ने ही नंत भव्य को तारा है। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन माने वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा अंदर से स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अपने आत्मा को आत्मा मानना और शरीर आदि को पर मानना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे? वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जान लेना, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना, किसी प्रकार की विपरीतता नहीं होने। जड़ को जड़ जानना और चेतन को चेतन जानना, और फिर अपने चेतन रूप भाव अपने करना और पर भावों से मुक्त होना, उसको चारित्र कहते हैं।
वो चारित्र है। ये तीनों मिल करके हमारी नैया को पार लगाएंगे, दूसरे कोई पार लगा सकता नहीं। ऐसा ही जिनेंद्र देव द्वारा कहा गया। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटात्म रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। भीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। देह छता जेनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। सद्गुरु देव की, परम कृपालु देव की जय। त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय।